हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम टू ऑल द व्यूवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ चैस्टिटी और हमें यूथ को कितनी ज़रूरत है ये टॉपिक के लिए। एंड हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। आई डू बिलीव दैट वी आर ऑल डेस्टाइन्ड टू बी विद दैट वन पार्टनर। एंड हमारा लाइफ पार्टनर हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्म से मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है, और वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। सो मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ हम सब टीनेज और जो यूथ है कि be chaste, wait for that one person until unless your marriage is not fixed, or with your parents permission. Don't make this girlfriend boyfriend aspect a lifestyle or make it very casual thing, because it's just going to ruin our soul journey, and it's just going to get you so many steps away from Krishna, so many steps away from Krishna. And Prabhupada used to say that all girls should get married because of the protection husband gives, spiritual, mental, physical aspect of protection a girl's need is, and that is how law of nature is. And boys can either go to grihastha or brahmachari ashram, they can continue with it. So yes, please, till your marriage is not fixed, don't think of someone in your just don't make it worse for your grihastha ashram, because chastity is very very important. And हम लोग ने, हमारे यूथ ने इन कलयुग बहुत कैजुअली ले चुके हैं, इसलिए कि ठीक है, डिडंट वर्क आउट, नेक्स्ट, व्हाई? इफ इट डिडंट वर्क आउट देन व्हाई डू यू नीड टू आप कृष्ण को आपका साथी बनाइए ना, जब तक कृष्ण आपको आपके साथी से नहीं मिलाते। साथी होता क्या है? व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज नॉट, वी डोंट डू इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। पहली बात तो मैरिज बहुत सेक्रेड चीज़ है। आप सप्तपदी विधि के बाद एक हो जाते हो लिटरली, एंड यू मैरिज इज फॉर द पर्पस ऑफ growing in spirituality, making each other grow, making each other push each other towards Krishna, seeing each other as in the service mode. He has come in my life, she has come in my life for serving each other, for serving Krishna, or for making Krishna happy. अगर आप किसी से शादी कर रहे हो एंड वो कृष्णा के रूप में ही आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, एंड उनकी खुशी, उनकी सेवा इज you do that service lovingly till your last breath to please the Lord. If that is the consciousness, you can go back home in this birth itself. So it's a very very pure and sacred thing, marriage. उसके पहले अगर आप 2-3 people सोच रहे हो दिमाग में कि ये and that's going to ruin the entire process of this pure institution of marriage. आप शादी करते हो for भगवत प्राप्ति, for serving each other, for one thing I will tell you today is marriage is also bringing souls on this planet, teaching them, pushing them towards Krishna, giving them values so that they become, they have wonderful characters, and they serve Krishna. Whatever they do in their life, they do it for the pleasure of Krishna and Radharani and Guru Maharaj. So ये कितनी बड़ी सर्विस है आपको पता है? If a woman, of course, a father is very very equally, mother and father both are very important for a child's growth and nourishment, but mother aspect, she has the consciousness to develop a child's consciousness before the child is even born, and
कितना इम्पोर्टेंट सर्विस है ये, हम सब गर्ल्स को समझना चाहिए कि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा हम लोग जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, हम लोग जो चैंट कर रहे हैं, हम लोग जो खा रहे हैं, वो सब कुछ अफेक्ट होने वाला है, एंड दैट्स गोइंग टू मेक the future of this country and the future of this world, in fact. So it's it's the biggest service we can do for Krishna is to serve our children, to उन्हीं में कृष्णा के रूप, उनको ही देखिए ना आप, कृष्णा समझ के देखिए. Your children, your husband, your in-laws, your parents, your all these intimate relations Krishna has provided you with, it's to serve better. That's why, they come in your life to give you better services, to make Krishna happy. So yes, and chastity is very, very important. That shows your character, and that shows एक स्पेशल इंसान होना चाहिए ना लाइफ में, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, एंड when the right time is right, Krishna will reveal that one person who is made for you, and चीज़ें अपने आप सिंपल हो जाती है, मोर ब्यूटीफुल हो जाती है अगर आप रुके शादी के लिए और वो एक इंसान के लिए, एंड देन यू सी योर गृहस्थ लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल, एंड एक दूसरे के लिए आप समर्पित है, एक दूसरे के लिए आप सोच रहे, प्रे कर रहे, आप उस इंसान को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको पूजनीय स्थान पे रख के उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, एंड दैट मेक्स योर लाइफ मैजिकल, दैट मेक्स थिंग्स वेरी मैजिकल. एंड इसलिए मैं सब हमारी जनरेशन को ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट प्लीज़, वी हैव सो मैनी स्टोरीज in our shastra that women's chastity is so powerful. Like Mata Gandhari had, she was so chaste to her husband that she died blindfold. उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक पट्टी बांधी अपने eyes के सामने, just because her husband couldn't see. And when she opened her eyes, so much of power and so much of strength that chastity had, that blindfold had, so much of tapasya she did, that she could make, दुर्योधन जो है उनके पूरा बॉडी वज्र का बना पाई, just because of that strength she had. तुलसी एंड शालिग्राम की स्टोरी देखिए, she was so chaste to her husband Jalandhar that she prayed. She used to pray. Tulsi Mata used to pray for her husband's victory, and no power on this planet could defeat him, just because she was so much chaste to her husband. And that's why they had to, uski Shaligram और तुलसी माता की story भी is very, 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 very interesting, and that's why Krishna रूप लेके आते हैं, and it's a very detailed story. So yes, chastity it has so much power कि ब्रह्मचारी का पालन, हमें ये जो आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, and we all girls, boys are into this brahmacharya ashram till we grow into the grihastha ashram. There are 4 ashrams, right? So ये ब्रह्मचारित्व का पालन हम सबको बहुत डिसिप्लिन से करना चाहिए, till we find that one person who Krishna has made us for. And it's very, very important for our spiritual journey's growth, and for our spiritual growth, or even going towards Krishna. आप ये समझिए ना, कृष्णा एक ही है ना, कृष्णा एक ही है, तो वो पोजीशन आप किसी एक को ही दे सकते हैं, वो थॉट, वो पोजीशन आप किसी एक को ही दे सकते हैं. And until Krishna doesn't reveal who is that one person, you should not give that space, that place to anyone else. And that will make your life so magical, will make your life very happy. You enter into Grihastha ashram
keeping Krishna in center. And yes, that is the best thing you can ever do, and it will give you so much of happiness, and it will give Krishna so much of happiness. So yes, हमारा जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो अगला आपकी लाइफ बना रहा है, तो we have to think about that next aspect also. So yes, अभी से अगर हमने निर्णय लिया, हमने यूथ ने निर्णय लिया कि वी शुड मेक दीज स्मॉल स्मॉल चेंजेस विच आर वेरी वेरी बिग इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फॉर आवर सोल्स जर्नी. दीज आर द मेजर चेंजेस फॉर आवर सोल जर्नी. अगर ये निर्णय हमने लिए तो वी कैन चेंज द फ्यूचर, वी कैन imbibe these characteristics in our future generations to come, in the next to come. So बहुत important है ये सब चीज़ें. And I have one more story about chastity, that there was a couple, there are two, ये मैंने प्रेमानंद जी महाराज की लेक्चर में सुना, I don't remember. There are two that I will just quickly tell you all, I'm sorry, but yeah. तो हाँ, उसमें क्या था एक स्टोरी में कि एक वुमेन्स चास्टिटी के बारे में बताते हैं ये दोनों कहानियाँ. एक तो एक कपल थे, ऋषि थे, दे गेट अ सन एंड शी. इस स्टोरी का ये अर्थ है कि कृष्णा प्रोवाइड्स फॉर everyone, Krishna provides, we don't need to ask for it, and this is the slogan of the story. And एक माता जी ने पूछा कि I'm ill and after I leave this body, तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, वो टेंशन रहता है मुझे. तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि देयर वाज अ कपल, दे गेट अ सन एंड उसके हस्बैंड उनको तपस्या करने जाना रहता है टू द फॉरेस्ट. तो वो बोलते हैं कि मैंने आपका पानी ग्रहण किया है, मेरी वाइफ ही आ सकती है मेरे साथ, और ये बच्चा नहीं आ सकता, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा. तो वो माँ बोलती है भी कैसा होगा मेरे बच्चे का, मैं तो आई कांट लीव हिम एंड मैं कैसे. तो फिर ही इज़ लाइक नो, ओनली यू कैन जॉइन मी, ओनली माई वाइफ कैन जॉइन मी. सो नेक्स्ट डे वो अपने बच्चे को, छोटा बेबी को लेके उनके पीछे जा रही रहती है, जहाँ पे उनके हस्बैंड जा रहे रहते हैं उनके पीछे, क्योंकि उन्हें जीवन साथी है ना, तो वो जहाँ जाएंगे वो वहाँ जाएंगे. सो वो पीछे जा रहे रहते हैं. वो देखता है कि वो इतने धीरे क्यों चल रही है. सो शी हैड कैरीड दैट सन विथ हर. सो ही सेज नो, मैंने आपका पानी ग्रहण किया, आप मेरे साथ आ सकते हैं, आप मेरी अर्धांगिनी है, you have to leave him. So she's like, how can I leave him? He's like, you have to choose. So she chooses her husband over the child, and तो वो छोड़ देता है उधर. एंड आफ्टर फ्यू इयर्स वो टेंशन रहता है उन्हें कि क्या हुआ रहेगा मेरे बेटे का, कैसे हुआ रहेगा. सो द ऋषि कम्स एंड फॉर हिज वाइफ सेक ही आस्क व्हाट हैपेंड. जैसे ऋषि का बेटा उन्होंने छोड़ दिया था, उसका क्या हुआ आगे. तो फिर they say that that itself a Raja had come and he saw that Rishi's child and he adopted him as his own and now he's ruling the kingdom. So कहने का ये उद्देश्य है कि कृष्णा की लीला जो है वो उनकी लीला है, वो ये वही समझ सकते हैं. एंड देन द ऋषि सेज, देखा हमारे साथ रहता तो वो क्या बनता, नाउ ही इज़ रूलिंग द किंगडम. सो एवरीवन गेट्स अकॉर्डिंग टू दैट भाग्य. एंड कृष्णा छोटे चींटी को भी सप्लाई करते हैं, तो हमें क्यों नहीं सप्लाई करेंगे. वो सबके, वो जगत पिता है, वो सबके लिए, उनके लिए प्लान्स है, सबके लिए बेस्ट प्लान्स हैं, सबको वो सप्लाई करते हैं, सबके अपने अपने हिसाब से. सी सेकेंड स्टोरी इज़ दैट एक कपल अगेन रहता है एंड वो माता जी बहुत स्पिरिचुअल रहती है, और उनके हस्बैंड का एसोसिएशन, मैं इसमें बताना चाहती हूँ एसोसिएशन, हाउ इम्पोर्टेंट एसोसिएशन इज़. सो यस, तो माता जी बोलती है प्रभु को कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं और वो आपको दीक्षा देना चाहते हैं. तो मेरे दीक्षा हो चुकी है. तो प्रभु जी बोलते हैं क्यों यार, दीक्षा विक्षा नहीं है, ये सब. तो फिर वो बहुत सालों बाद वो प्लीज़ उनको कहती हैं आप भी नाम जप शुरू कीजिए, आप भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कीजिए. तो वो सुनते नहीं हैं. तो रोज़ का उनका सुनने का वो इरिटेट होता है. तो एक दिन बोलते हैं ठीक है चलो गुरु जी आ रहे हैं, मैं दीक्षा ले लेता हूँ. एंड दैट डे ही गोज़ टू द रिवर टू नहाने के लिए वगैरह. तो
वहाँ उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि प्रभु आप यू नो वाई यू डूइंग दिस, टेकिंग दिस दीक्षा एंड सब क्यों, वापस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और सब कुछ करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हो ये सब हाउ यू विल बी एबल टू फॉलो और वॉट। तो ये सब सुन के उनका माइंड बदल जाता है, वो बोलते नहीं दे लेनी दीक्षा। तो वो वाइफ सैड हो जाती है एंड उनकी इतनी आसक्ति रहती है उनके हस्बैंड के लिए, इतना अटैचमेंट रहता है दैट शी you know when they leave that life happens, the next she has to take birth because she is so attached with her husband. तो उनके कर्म के हिसाब से वो एक प्रिंसेस बनती है और उनके हस्बैंड नेक्स्ट बर्थ में एक एलिफेंट बनते हैं उनके ही राज्य में। तो एलिफेंट को तो वो नेक्स्ट बर्थ में जो रानी रहती है, वो जो प्रिंसेस रहती है, उनकी शादी के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वो एलिफेंट को समझ में आता है कि यू नो थ्रू दैट मिस्टिकल दिस थिंग दैट शी वाज माय वाइफ एंड समवेयर ही अंडरस्टैंड्स दैट एंड शी वाज सो चेस्ट टू मी, एंड वो नहीं देख पाते कि वो किसी और की हो जाएगी इस बर्थ में। सो वो खाना पीना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज हियरिंग कि उनकी शादी किसी और के साथ फिक्स होएगी, ये वो तो वो छोड़ देते हैं सब खाना पीना एंड ही स्टार्ट्स गेटिंग वेरी वेरी लो एंड इल, बीमार पड़ता है वो। तो ये द्वारपाल जो है वो बताता है राजकुमारी को ऐसा ऐसा हुआ है एक एलिफेंट के साथ। तो शी अंडरस्टैंड, शी हैज़ दैट पावर, दैट इंट्यूशन, शी अंडरस्टैंड्स एंड शी गोज दैट ओके दिस वाज, शी रिमेंबर्स दैट प्रीवियस बर्थ एंड शी सेज कि नो कोई बात नहीं, वो द्वारपाल को बोलती है मैं जाके उन्हें देखती हूँ एंड आई विल सी कि वो ठीक ठाक हो जाए। तो फिर वो जाती है और एलिफेंट को बोलती है कि मुझे पता है कि आप पिछले जन्म का हमारा व्हाट रिलेशन शेयर एंड मैंने बोला था नाम जप कीजिए, दीक्षा लीजिए, कोई बात नहीं, आई विल गिव दिस मंत्र टू यू इन योर ईयर एंड देन यू नो you can continue with that. And then she puts that Varmala in his head and she gives that mantra to him and then he starts chanting and उनका जीवन सार्थक होता है। So you know he gets that mantra finally. So she had so much of love and she was so much chaste to her husband that कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से कृष्णा got that mantra to her, that soul. And that's why I always say that every soul is like human beings, we have that consciousness to love Krishna, to serve Krishna. The other souls unfortunately don't have that, but Prabhupada always says that we can chant to them, we can chant Harinam to them, and Paramatma is always there inside. So yes, always pray that every soul gets Harinam, and Harinam is very very important. So yes, let's chant all of us together. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. This was a video, I know it's been long, it's 18 minutes, but I hope you liked it. And yes, please make these beautiful changes in your life to quickly go back home, and let's not make Krishna wait longer for us. Let's use this free will correctly. So yes, Hare Krishna, and I hope you spread Harinam and this Krishna consciousness movement and your family, friends, and please Srila Prabhupada, Maharaj and Radharani Hare. Hare Krishna.